everybody, welcome back to Kingdom of Learning. तो you all must be thinking कि where was I for a long while, क्योंकि बहुत सारे टाइम से I have not uploaded any videos on YouTube. Actually I was just missing from YouTube, so there were certain reasons for that. So before I start this power pack video, I will tell you about that reason also. I hope you all will understand. And first of all, let us talk about this video. Why is this video going to be a very important video for all those aspirants, especially first semester students. They may be regular, they may be SOL or NC Web from Delhi University. So we are going to talk about the starting of classes for semester 2 on 1st April. Then we are going to discuss about the result, if classes are going to start, what about the result? And then at last we will discuss about the pass percentile, means how are you guys going to be promoted or not promoted to your next semester or your next class. So let's start. So as I told you कि सबसे पहले मैं आपको reasons बताना चाहती हूँ कि why was I not uploading videos on YouTube for a long reason. So actually there are two reasons. One reason is that I was very much busy in my online startup which I have started, that is KOLE Gurukul. If you know about it, it's good, but if you don't know about it, so I have uploaded another video on my channel also, and on my Instagram also I keep on uploading information about that. So that is actually an online platform where we provide sessions to the students of all classes. These are online interactive sessions, and we provide them sessions on spoken English, on English grammar, on creative writing and life skills. So if you are also interested, you can just leave a comment, or you can go to our website. The link is also provided in the description box. So one was this reason. Another reason was that for a long while I was not keeping well, that maybe due to change of weather. Still I'm not feeling that much better, means I'm feeling low on energy. So energy levels are low. I don't know the reason, what is the reason behind that, but now I'm trying to do, it may be due to overwork, or it may be due to weather, anything. Means I have been taking medicines, but still I'm not feeling that much perfectly fine. But now I have decided that whatever may happen, but I will upload regularly on YouTube, because this was the first thing which I started as my passion. We will discuss about the students of first semester. आप सबके एग्जाम्स चल रहे थे. एग्जाम से पहले बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही थी, बहुत ज्यादा परेशान चल रहे थे आप सब की क्या हो रहा है, कैसे होंगे, ओपन बुक एग्जाम्स होंगे, कहीं हमारे कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए. तो आई होप कि सबका सबके एग्जाम्स अच्छे से हो गए होंगे. और आई थिंक बाय द मीन्स आज तो हो सकता है कि एग्जाम्स ओवर ही हो गए हो, बिकॉज इफ वी गो टू द एकेडमिक कैलेंडर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसमें आपके एग्जाम्स की जो डेट लिखी हुई है 15 मार्च टू 27 मार्च, तो होपफुली 27 मार्च तक सबके एग्जाम्स ओवर हो जाएंगे. तो अब अगर आप सेकेंड सेमेस्टर के या फिर थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप इस रास्ते पर एक बार चल चुके हैं. आपको पता है कि यूनिवर्सिटी में क्या क्या होता है, कैसे पास होते हैं, कैसे बैक आती है, कैसे सब कुछ होता है. बट अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं तो डेफिनेटली आपकी टेंशन, आपकी एंजाइटी बिल्कुल जेन्युइन है. मीन्स इफ वी हैड बीन एट योर प्लेस, तो हम भी ऐसे ही फील करते, क्योंकि कोई भी काम अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो डेफिनेटली थोड़ी प्रॉब्लम, थोड़ा सा डाउट, थोड़ा सा डर तो रहता ही है. तो आई एम गेटिंग कॉल्स फ्रॉम सम ऑफ माई एक्स स्टूडेंट्स ऑल्सो, दे आर ऑल्सो इन फर्स्ट semester and they are also getting worried कि मैम कैसे होगा, क्या होगा, रिजल्ट कब आएगा, this and that. So I thought कि मेरी कम बैक वीडियो will be on this topic only. तो come back means after a long while I was here only. I hadn't gone anywhere, but I was not uploading. So the thing is कि अगर आप रिजल्ट की बात करें, तो अगर हम देखें कि जिन बच्चों के दिसंबर में एग्जाम्स हुए थे, सेकेंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर जिनके भी, उनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है.
तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपका रिजल्ट अभी नेक्स्ट वीक में आ जाएगा या कुछ दिनों में आ जाएगा, तो आई थिंक यू आर रॉन्ग। तो अगर हम यूनिवर्सिटी के ट्रेंड को देखते हैं तो इट गोज लाइक दिस की रिजल्ट इजीली या जल्दी से नहीं आता, और वैसे भी ये ओपन बुक एग्जाम्स हैं तो इसका रिजल्ट तो वैसे भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डिलेड हो, राइट? क्योंकि ओपन बुक में वैसे ही अगर हम स्क्रीन पे या फोन में कुछ चेक करना है तो इट इज वेरी मच hectic, you can say, and very problematic. Like I really don't find it good enough to check some papers or some work on screen. So अब बात आ जाती है कि रिजल्ट तो पता नहीं कब आएगा। इट मे टेक 1 month, इट मे टेक 2 months, 3 months, 4 months, 6 months भी लग सकते हैं अगर हम पीछे के ट्रेंड्स को देखें तो। बट अगर रिजल्ट नहीं आएगा तो 1 अप्रैल से सेकेंड सेमेस्टर की पढ़ाई स्टार्ट हो रही है, वापस से उनकी स्टडीज स्टार्ट हो रही हैं, तो वो कैसे होगी 1 अप्रैल से? कि क्या यूनिवर्सिटी सबको अप्रैल फूल बना रही है या एक्चुअली में ही आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं? तो इस चीज पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एक्चुअली इफ वी गो बाय द एकेडमिक कैलेंडर, तो उस एकेडमिक कैलेंडर में जो कुछ भी लिखा हुआ था अब तक वो सारा उसी के अकॉर्डिंग ही जा रहा है। लाइक एकेडमिक कैलेंडर जो है आपका आई थिंक अक्टूबर में आया था, उसमें लिखा था 18 नवंबर से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, हो गई, भले ही कैसे ही हुई, कुछ पढ़ाई हुई या नहीं हुई, बट वो ऑफिशियली हो गई, राइट? उसके बाद एग्जाम्स का था कि इस दिन से आपकी प्रेपरेटरी हॉलीडेज हो जाएंगी, वो हो गई। 15 मार्च से एग्जाम होंगे, वो भी हो गए। 27 को खत्म होंगे, वो भी हो गया। तो अब अगर उन्होंने लिखा है कि सेकेंड सेमेस्टर इवन सेमेस्टर, उन्होंने इवन सेमेस्टर लिखा है, मीन सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर, राइट? तो सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर की जो स्टडीज हैं, जो क्लासेस हैं, वो वापस 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगी। आपको बीच में 3-4 दिन की हॉलीडेज मिली है, तो उसके बाद आपकी पढ़ाई वापस स्टार्ट हो जाएगी। तो अब वो कैसे होगी, मीन्स रिजल्ट के बिना कैसे होगी? तो यहां पर आपको ये समझना जरूरी है कि एक्चुअली रिजल्ट सेमेस्टर्स का मैटर ही नहीं करता। लाइक आपको सेमेस्टर के अकॉर्डिंग प्रोमोट नहीं किया जाता, आपको साल 1 ईयर के बाद आफ्टर 2 सेमेस्टर्स यू आर प्रोमोटेड। तो आपको ये चीज समझनी होगी, स्पेशली फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को, भले ही वो SOL के हैं, NC-Web है या रेगुलर हैं, कि आपका प्रमोशन अभी नहीं होना, अभी आप फर्स्ट ईयर में ही हैं। आपका सिर्फ एक सेमेस्टर कंप्लीट हुआ है, जिसके एग्जाम्स हो गए हैं, जिसका रिजल्ट जब भी आएगा, बट आप सब सेकेंड सेमेस्टर में जाएंगे। सेकेंड सेमेस्टर में आप सब बैठेंगे, उसमें आपको डरने की, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एंड में हम डिस्कस करेंगे कि किस किस को, लाइक कौन कौन पास हो सकता है, कौन कौन फेल हो सकता है, या फेल होता भी है या नहीं होता। तो वॉच कंप्लीट वीडियो। तो अब ये बात आ जाती है कि आपका रिजल्ट कभी भी आएगा, इट मे गेट डिलेड, इट मे कम अर्लियर ऑल्सो, बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम और है, इस बार हो सकता है आपका रिजल्ट और भी लेट हो जाए, क्योंकि स्ट्राइक चल रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स की। तो चेक उनको करने हैं पेपर, तो अब वो डिपेंड करता है कि वो कब चेक करेंगे, उनको ऑनलाइन है, आई टोल्ड यू, वैसे भी ज्यादा टाइम लगता है। तो रिजल्ट के भरोसे आप बिल्कुल नहीं बैठे। अगर आपकी 1 अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो स्टार्ट ज्वाइनिंग देम, क्योंकि आपका फर्स्ट सेमेस्टर की जो क्लासेस थी वो बहुत हैफेजर्ड थी, बहुत प्रॉब्लमैटिक थी, तो आप सब परेशान थे। बट इस बार मीन्स दिस टाइम आई रिक्वेस्ट यू ऑल की 1 अप्रैल से अगर क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं तो उनको रेगुलरली आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि और फर्स्ट सेमेस्टर वाला काम आप रिपीट ना करें तो इट विल बी बेटर। तो अब बात आ जाती है कि लाइक आपको पता कैसे चलेगा कि क्लासेस स्टार्ट होनी है 1 अप्रैल से या नहीं? तो उसका नोटिफिकेशन आपको आएगा, हो सकता है अब तक आ गया हो, बट यहाँ पर भी वही पेज है कि स्ट्राइक, जो टीचर्स की स्ट्राइक चल रही है, उसकी वजह से हो सकता है क्लासेस भी डिले हो, या वी डोंट नो कि व्हाट विल हैपन, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। इफ टीचर्स आर नॉट देयर, इफ टीचर्स आर ऑन स्ट्राइक, तो हु विल टीच? तो दिस थिंग ऑल्सो विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि क्या रहता है, कैसे क्लासेस स्टार्ट होती हैं। तो फॉर दैट यू नीड टू कीप चेकिंग द वेबसाइट ऑफ योर यूनिवर्सिटी। अब आती है कि कौन पास होगा, कौन फेल होगा। ऑब्वियसली आप सेकेंड सेमेस्टर पढ़ने तो लग जाओगे, बट एक माइंड की कॉर्नर में एक बात तो रहेगी कि हम पास भी होंगे कि नहीं होंगे, हम ऐसे ही सेकेंड सेमेस्टर पढ़े जा रहे हैं। तो इसके लिए आपको यूनिवर्सिटी का सिस्टम समझना जरूरी है
कि अगर आपके लाइक एक तो यूनिवर्सिटी की जो आपकी मार्कशीट आती है उसमें मार्क्स नहीं होते, उसमें ग्रेड्स होते हैं। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कितने मार्क्स पे कितना ग्रेड होता है तो उसके लिए आई विल अपलोड अनदर वीडियो, डू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, क्योंकि वो एक और लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, उसमें हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे कि इतने मार्क्स वालों को ये ग्रेड मिलता है, इस ग्रेड वाले पास होते हैं, उस ग्रेड वाले फेल होते हैं। तो नाउ मैं अभी रफली बता देती हूँ कि लाइक इफ योर मार्क्स आर लेस देन 35%, 1 to 35%, तो यू विल बी कंसीडर्ड फेल। अब फेल यहाँ नहीं होता, फेल नहीं होता, आपको बैक मिलता है। बैक मीन्स आप आगे प्रमोट तो हो जाओगे, बट आपका जो पेपर में, जिस एक पेपर में, 2 पेपर में आपके 35 से कम परसेंटेज है, वो पेपर आपको इसेंशियल रिपीट करना पड़ेगा। कब रिपीट करना पड़ेगा? इमीडिएटली नहीं, वो आपको आपके सेमेस्टर के साथ, मीन्स अगर आप ऑड सेमेस्टर में आपका लाइक आया है रिपीट, तो आपको ऑड सेमेस्टर में जाकर ही करना पड़ेगा। लाइक अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं तो आपको फिर थर्ड सेमेस्टर के साथ जाके करना पड़ेगा, अभी सेकेंड वाला जो अगस्त में होना है उसमें नहीं, राइट? तो 35% इज इसेंशियल, अदरवाइज इसेंशियल रिपीट विल बी देयर। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट। तो अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, पास तो सब हो ही जाएंगे, बिकॉज ओपन बुक था, आपके पास बुक्स थी, एंड आई होप कि आप सबने कर ही लिया होगा। बट कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनका कोई एग्जाम रह गया था या जो मिस हो गया था, तो उनका क्या होगा उसका भी आई विल गिव इंफॉर्मेशन इन अनदर वीडियो, बिकॉज आई होपफुली नाउ आई बी रेगुलर ऑन माई चैनल एंड आई हैव created one more video also on that course which I had started, 15 days English speaking course. So that I had left in between up to day 12 only. Now day 13 is also ready. So that will also be uploaded, और हो सकता है वो इस वीडियो से भी पहले आ जाए। तो stay tuned for that. I need your support. All of you please support me and subscribe to the channel, because this was also one of the reasons that I started uploading very less videos on my channel, because I started feeling कि कुछ नहीं है, मीन्स बच्चे देखते हैं बट सब्सक्राइब तो करते नहीं है चैनल को, बिकॉज यू कैन सी द डाटा ऑन द चैनल कि सब्सक्राइब वाले जो होते हैं वो 13-14% ही होते हैं जो हमारे व्यूअर्स होते हैं, मोस्टली चैनल्स पे यही होता है। तो गाइज इफ यू फाइंड दैट somebody is working hard for you, at least you can subscribe to the channel, at least you can share the video with some of your friends, so that अगर हम हार्ड वर्क कर रहे हैं तो हमें थोड़ा सा उसका फीडबैक भी मिले, तो that will be a motivation for all the YouTubers. I'm not saying this for only for me, I'm saying it for everyone. So if you want that I should upload regularly, please subscribe to Kingdom of Learning, share my videos, और आप लाइक भी नहीं करते हैं वीडियो को तो प्लीज लाइक